Happy Independence Day to everyone. I Dipti Gupta and today I'm going to show you how to make a beautiful tricolor wall hanging. Okay, so let's start. First of all, okay, take a square piece paper and fold it like this. Piece of paper and fold it like this and then draw a butterfly shape. Draw it properly. And then cut it. हमने कट कर लिए बटरफ्लाई शेप्स वाइट ग्रीन एंड सैफरन. ओके, नाउ हमारे पास अगर वूल रखा है तो हम वूल यूज करेंगे एंड लाइक दिस फोल्ड. आपने एक बंच बना लिया पूरा. देन कट इट. एंड जॉइन. इसको टॉप से जॉइन कर देंगे एक नोट लगाकर, सो ये हिले नहीं. नाउ इसे कट कर देंगे लाइक दिस एंड देन फ्रॉम द टॉप इसको हम एक नोट डालेंगे सो दैट ये हिले ना. एक्स्ट्रा फिर हम कट कर देंगे. नोट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस डाल सकते, बाई चांस खुल ना जाइए. लेंथ इक्वल कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे. सेम एज इट इज हमने ये सैफरन का किया है. नाउ यू कैन सी दिस डिफरेंट कलर्स के हमने ले लिए. स्टार्टिंग विद द हेल्प ऑफ निडल एंड थ्रेड हम वॉल हैंगिंग तैयार करेंगे. जस्ट एंड यू कैन यूज द बीड्स ऑल्सो ना फॉर डेकोरेटिंग. आप बीड्स भी यूज कर सकते हैं, लाइक मैम पर्ल यूज कर रहे हैं. different shape. Okay, then white color because हमने ट्राई कलर है. ये इंडिपेंडेंस डे पे हम लोग बना रहे हैं, तो ट्राई कलर के अकॉर्डिंग हम first of all saffron, then green, then white, then green. Okay, then saffron. You can add bead in between भी add कर सकते हैं. नाउ वन बाय वन हम बटरफ्लाइज को लगाएंगे. बिफोर दैट 2 बीड्स पर्ल, 2 या 3 एज यू विश, जितना आप स्पेस देना चाहें. मैम ने 4 लिए हैं. ओके, देन with the help of Fevicol, Fevistick, you can okay. जो हमने 2 पीस काटे थे फैब्रिक ये पेपर के, लाइक पेस्ट बीड्स यूज किए. देन अगेन मैंने इसको पेस्ट कर दिया. देन 5 बीड्स, देन अगेन saffron, white and green. Okay, and again now you can tie up this. आप इसको नॉर्मली टाई अप भी कर सकते हैं. एंड फॉर डेकोरेटिव
आप कोई भी आइटम यूज़ कर सकते हैं। मैम ने स्टोन यूज़ कर रहे हैं, मैम डिफरेंट स्टोन यूज़ कर रहे हैं डेकोरेट करने के लिए बटरफ्लाइज पे। हमने इसको डेकोरेट कर दिया स्टार से एंड ऊपर में मैम ने एक नोट टैप कर दिया। ओके, ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग ऑफ ट्राई कलर, वेरी नाइस ना। My name is दिव्या कुंज। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की और कौम पे लुटाए जा। विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। जय हिंद। Hello, dear children. A very happy Independence Day to all of you. Right? 15th August 1947. Wonderful day, wonderful date, wonderful year. Right? We all got the freedom on this great day. Right? Many freedom fighters, they sacrificed their lives. They did so much for this country, for Mother India, that no one on this earth can repay them. Right? They might be having something in their minds for the coming generations also. Like, you are the upcoming generation of Mother India. Right? We all know that the lovely children, they love their country very much, and no doubt about it. Right? We have to just have a great vision in our eyes. We have to follow the rules and regulations very nicely. We have to concentrate on our academics and also sports, because academics and sports, they go hand in hand, and we can become a very responsible citizen of Mother India. Right? So today ma'am is going to speak few lines which are written by the great Dr. APJ Abdul Kalam. I'll be speaking those lines in front of you. You just have to listen to these lines very carefully, because these are very beautifully written. Right? Fine. This song is the song of youth. Right? As a young citizen of India, armed with technology, knowledge, and love for my nation, I realize small aim is a crime. I will work and sweat for a great vision, the vision of transforming India into a developed nation, powered by economic growth with value system. I am one of the citizens of the billion. Only the vision will ignite the billion souls. It has entered into me. The ignited soul, compared to any resource, is the most powerful resource on the earth, above the earth, and under the earth. I will keep the lamp of knowledge burning to achieve the vision, developed India. If we work and sweat for the great vision with ignited minds, the transformation leading to the birth of vibrant, developed India will happen. I pray the Almighty, may the divine peace with beauty enter into our people. Happiness and good health blossom in our bodies, minds, and souls. So here were the great lines by Dr. APJ Abdul Kalam. दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है. Our flag, our Tiranga honors those who have fought to protect it and is a reminder of sacrifices of our nation's hero. इस साल हम भारत की आज़ादी की डायमंड जुबली मना रहे हैं, यानी
75वीं सालगिरह। इस अवसर पर मान सम्मान होगा उन वीर सपूतों का जिन्होंने भारत के नाम को आगे पहुंचाने में मदद की, भारत की रक्षा के लिए सदैव आगे आए। घर घर तिरंगा लहराया जाएगा। हमारे देश की आन, शान और बान तिरंगा, जो पूरे देश में सम्मान के साथ फहराया जाता है। इसकी रक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ते लड़ते न जाने कितने ही जवान शहीद हो गए, परंतु देश के मान सम्मान को कभी आंच न आने दी। क्या आपको पता है, आज जिस स्वरूप में हम तिरंगे को देख रहे हैं, यह पहले ऐसा नहीं था। आइए जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे तक बनने का सफर। स्वतंत्र देश का एक राष्ट्रीय झंडा होता है जो उसकी कहानी बयां करता है। क्या आपको पता है, वर्तमान स्वरूप यानी तिरंगे तक पहुंचने से पहले हमारे इस ध्वज ने 6 बार अपना रंग और स्वरूप बदला। सबसे पहला तिरंगा 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। कैसा था ये झंडा, आइए इस बारे में जानते हैं। इस झंडे में 3 रंग की पट्टियां तो थीं, लेकिन रंग अलग अलग थे। सबसे ऊपर की पट्टी थी हरे रंग की, जिस पर कमल के फूल बने हुए थे। बीच की पट्टी थी पीले रंग की, जिस पर लिखा हुआ था वंदे मातरम। और सबसे नीचे की पट्टी थी लाल रंग की, जिसके एक तरफ सूरज तो दूसरी तरफ चांद बना हुआ था। फिर 1907 में मैडम कामा ने बर्लिन में एक झंडा फहराया, जो था तो पहले वाले झंडे के रूप रंग का, लेकिन इसमें ऊपर की पट्टी पर कमल के फूलों की जगह 7 तारे बने हुए थे। मैडम कामा ने इसे बर्लिन में फहराया था, इसीलिए इसे बर्लिन कमेटी का झंडा कहा जाता है। तीसरा झंडा आया 1917 में। इस झंडे को होम रूल मूवमेंट के दौरान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने बनाया था, और इस झंडे पर 5 लाल और हरी पट्टियां थीं, जिन पर तारे बने हुए थे, और झंडे के ऊपर लेफ्ट साइड में ब्रिटेन का झंडा था। लेकिन यह झंडा लोगों के बीच फेमस नहीं हो सका। इस झंडे के बाद 1921 में एक और झंडा आया, जिसमें आज के तिरंगे वाले 3 रंगों की पट्टियां तो थीं, लेकिन इन पट्टियों में सफ़ेद रंग की पट्टी सबसे ऊपर, उसके नीचे हरे रंग की पट्टी और उसके नीचे थी लाल रंग की पट्टी, और इन तीनों के ऊपर था नीले रंग का चरखा। साल 1931 में तिरंगे की यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव आया। इस साल रेजोल्यूशन पास कर तिरंगे को आधिकारिक तौर पर भारत के झंडे के रूप में स्वीकार किया गया। यह आज के झंडे से मिलता जुलता तो था, जिसमें बीच की सफ़ेद पट्टी पर चक्र के स्थान पर चरखा बना हुआ था। 22 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ ही दिन पूर्व आया हमारा आज का तिरंगा, जिसे बनाया था पिंगली वेंकैया ने, जिसमें 3 समान आकार की पट्टियां थीं। पहली केसरिया, दूसरी सफ़ेद और तीसरी पट्टी है हरे रंग की, जिसमें बीच की सफ़ेद पट्टी पर अशोक चक्र बना हुआ है। इसमें शामिल हर रंग और चक्र पूरी दुनिया को हमारे भारत का संदेश देते हैं। जहाँ केसरिया रंग शहीदों के बलिदान की याद दिलाता है, तो सफ़ेद रंग शांति और अमन चैन का संदेश देता है। हरा रंग खुशहाली और हरियाली का संदेश देता है, तो इसमें बना चक्र कभी ना रुककर सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो ये कहानी थी हमारे राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे तक बनने की। तिरंगा हमारे देश की एकता और शक्ति का प्रतीक है। हमारा यह तिरंगा सदा यूं ही लहराता रहे और इसकी आन बान शान कभी कम ना हो, कभी ना झुकने पाए यह तिरंगा। इसकी रक्षा करना हर भारतवासी का कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।